Today we will discuss the rules for tracing images formed by the concave and convex mirrors. कि images जो बनती हैं उनके बनने के अपने कुछ particular rules हैं. Images formed by concave mirror and convex mirror, they have some particular rules and those rules today we will define. So let's see the very first rule कि if a light ray is coming parallel to the principal axis, if a light ray is falling on the mirror which is parallel to the principal axis of the mirror, it will pass through the focus after the reflection. It will pass through the focus after the reflection. This is the very first rule. Is it clear? This is in case of concave mirror. Now if we see in case of convex mirror, the rule will again be the same. Convex mirror की केस में अगर हम बात करेंगे, the rule will again be the same. किस तरह से कि if a ray is coming parallel to the principal axis, अगर कोई ray जो आ रही है, if a light ray is coming parallel to the principal axis, तो इसे हम क्या कहेंगे? This is incident ray. This is incident ray. तो कहते हैं it will reflect back and ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इस तरह से एंड इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस. इस तरह से ये प्रिंसिपल एक्सिस से पास होते हुए नजर आएगी कि या तो एग्जैक्टली ये प्रिंसिपल फोकस या तो ये एग्जैक्टली प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी इन केस ऑफ कनकेव मिरर, और प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए नजर आएगी किसके केस में? इन केस ऑफ कन्वेक्स mirror. So this is very first rule of the, we can say, the image formed by the concave and the convex mirror. ठीक है? So this is incident ray and this one will be the reflected ray. इसको हम reflected ray कहेंगे. यहाँ पर ये हमारे पास incident ray है and this one is the reflected ray. Is it clear? The reflected ray, it will always pass from the principal focus. कब? When the incident ray is in we can say is coming parallel to the principal axis, जो कि ये क्या है हमारे पास, ये लाइन क्या है? principal axis. तो principal axis के parallelly अगर कोई ray of light आ रही है और वो किसी कॉन्केव या कन्वेक्स मिरर से आकर टकरा रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक. और जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो वह कहां से पास होगी? इट विल पास फ्रॉम द, कहां से? फ्रॉम द फोकस ऑफ दैट concave or convex mirror. Then second rule, a ray of light which is passing through the center of curvature. यानी now we will talk about the ray of light which will pass through the center of curvature. कि if the ray is coming in this direction, अगर ये ray इस direction में आ रही है, this is incident ray. If the ray is coming or we can say is passing through the center of curvature, then it will strike the hair, it will strike to the mirror here, ये mirror पे यहाँ पर आकर के टकराएगी. तो कहते हैं it will reflect back along the same direction, वो उसी direction से reflect back हो जाएगी. Is it clear? In case this will happen in case of concave mirror. But what will happen in case of convex mirror? अगर हम बात करते हैं convex mirror की, तो convex mirror के केस में if a ray of light is coming in this direction, अगर ये इस direction में इस तरह से आ रही है, is it clear? If it is passing through the center of curvature, तो इसका center of curvature कहाँ पर है? Away from the reflecting surface. अगर ये reflecting surface है, incident ray यहाँ पर आकर के टकरा रही है, तो वो इसी direction में वापस चली जाएगी, ऐसे ही पीछे extend कर जाएगी. तो ये तो है हमारा क्या? Incident ray, और ये वापस चली गई कौन सी है? That is reflected ray. तो इस तरह से इमेज बनेगी. नाउ लेट्स सी द थर्ड रूल. नाउ सी द थर्ड रूल. देखिए बेटे थर्ड रूल हमारा क्या है कि इफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है जो फोकस से पास करती है तो इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द मिरर. कि जैसे ही वो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट मिरर सरफेस से टकराएगी और रिफ्लेक्ट बैक होगी तो वो क्या करेगी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली वापस आएगी. तो देखिए कि सपोज दिस इज द कनकेव मिरर, अगर हमारे पास ये कनकेव मिरर है और एक ये रे ऑफ लाइट है दैट इज इंसिडेंट रे. यानी इंसिडेंट रे किसे कहते हैं? जो लाइट रे आकर के गिरती है.
इफ दिस रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, अगर ये रे फोकस से पास हो रही है तो देखिए टकराने के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है और ये टकरा करके वापस कैसे हो जाएगी, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए मैं दोबारा से डायग्राम बनाती हूँ कि सपोज दिस इज द मिरर, मिरर के ऊपर हमारे पास ये क्या है, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड सपोज दिस इज द सेंटर। तो कहते हैं अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करती है, अगर ये रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही है एंड इट इज पासिंग थ्रू द फोकस एंड स्ट्राइकिंग टू द मिरर हेयर, अगर ये मिरर पे यहाँ पर आकर के स्ट्राइक कर रही है तो इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट बैक होकर के जब भी आएगी तो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। सो ये क्या था हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक। सेम हियर, यहाँ पर भी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की जब हम अगर बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी ऐसे ही होगा कि जो रे ऑफ लाइट कहाँ से पास कर रही है, थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, जो हम इस तरह से आ रही है कि हमें लगे कि वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, तो वो जैसे ही यहाँ मिरर सरफेस पर टकराएगी तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा थर्ड रूल, दिस इज द थर्ड रूल। और थर्ड रूल क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस of the mirror, it will become parallel to the principal axis after getting reflected back from the mirror, कि जैसे ही वो मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होगी तो वो क्या हो जाएगी, it will become parallel to the principal axis, ये principal axis के पैरेलली हो जाएगी। Then the fourth is the ray of light passing through the pole of the mirror, अगर कोई भी ray of light है जो कि pole of the mirror, this is called to be the pole of the mirror. If I say कि this is the concave mirror and this is the pole of the mirror, pole of the mirror है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, this will be the focus and here this will be the center of curvature। तो ये कहते हैं if any ray of light is passing directly through the pole, अगर ये डायरेक्टली पोल से पास करेगी तो क्या होगा कि पोल से टकराते ही ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, जैसे ही ये रिफ्लेक्ट बैक होगी तो कहते हैं किस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होगी, जितना एंगल ये यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी, इंसिडेंट रे जितना एंगल बना रही है किसके साथ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उतना ही एंगल, सेम एंगल बनाएगी रिफ्लेक्टेड रे विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सिमिलर इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, इसी तरह से अगर हम कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं, सो दिस इज द कन्वेक्स मिरर एंड इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द पोल ऑफ द मिरर, तो पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ द मिरर, तो यहां से अगर ये सेंटर ऑफ द मिरर से पास करेगी यानी पोल ऑफ द मिरर से अगर ये पास करेगी तो दिस रिफ्लेक्टेड रे, वी कैन से दिस इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे ये भी सेम एंगल बनाएगी किसके साथ, विद द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द लाइन व्हिच इज कॉल्ड टू बी द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस अपने आप में वो लाइन है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच वी कैन से व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर, फोकस एज वेल एज पोल ऑफ द मिरर, जिसके ऊपर ये तीनों ही पॉइंट लाई करते हैं। तो यहाँ ये जो एंगल बनाया है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये जो एंगल होगा दैट विल ऑलवेज बी द सेम एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये थे हमारे 4 रूल एंड दीज आर द रूल्स ऑफ द for tracing the images formed by the concave and convex mirror. Now let's see the images formed by objects placed at different positions in front of the concave mirror. कि अलग अलग पोजीशंस पे अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। सो दिस इज अवर कॉन्केव मिरर, अगर हम एक कॉन्केव मिरर के फ्रंट में जो ऑब्जेक्ट है उसे अलग अलग पोजीशंस पर रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी, वो हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट पहले हम इंफिनिटी पर कंसीडर करते हैं और फिर उसे धीरे धीरे पास लेकर आते हैं। इज इट क्लियर? तो अलग अलग पॉइंट्स पर हम इसे स्टडी करेंगे। तो देखिए दिस इज अ कॉन्केव मिरर एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पर तीनों ही पॉइंट लाई करते हैं। दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। Is it clear? Now if we take the position of the object is at infinity, कि हमें पता ही नहीं है, कोई एग्जैक्ट उसकी पोजीशन डिफाइन है ही नहीं ऑब्जेक्ट की, तो देखिए ऑब्जेक्ट से आने वाली जो रेज हैं वो इस तरह से आएंगी। The light rays which are coming from the object they will come in this direction, वो यहाँ से यहाँ पर आकर के मिरर से टकराएंगी
इज इट क्लियर? और दूसरी लाइट रे सपोज वो यहां से आ रही है और वो यहां से आकर के मिरर के इस सरफेस पर टकराएगी। तो देखिए द रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है उसके लिए क्या रूल है? इट विल पास थ्रू द फोकस, वो फोकस से इस तरह से पास हो जाती है। इज इट क्लियर? रिफ्लेक्ट बैक होकर के कहां से पास होती है? फोकस से। और अगर हम इसी तरह से ये वाली इंसिडेंट रे देखते हैं तो इट विल अगेन पास थ्रू द फोकस, ये भी इस तरह से फोकस से पास हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो देखिए अब हमारी इमेज जो है वो कहां पर बनी? एट द फोकस। तो इमेज वहां बनेगी जहां रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक दूसरे को कट करेंगी। तो रिफ्लेक्टेड रे, एक तो रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है, एक रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास ये वाली है। तो ये रे दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रही है एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड टू बी द फोकस। इस पॉइंट को हमने क्या बोला है? फोकस। तो हमारी जो इमेज है वो कहां पर बनी है? फोकस पर बनी है। और साइज कैसा है? दैट इज पॉइंट साइज, यानी पॉइंट साइज की बहुत ही छोटी इमेज, पॉइंट साइज्ड इमेज यहाँ पर हमारी बन रही है। इज इट क्लियर? और नेचर इसका कैसा रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, यानी एक्चुअल में ये इमेज कैमरा पर ऑब्टेन की जा सकती है, एज वेल एज इसका जो लेफ्ट होगा वो हमें राइट दिखाई देगा और राइट होगा वो हमें लेफ्ट दिखाई देगा। ये मीनिंग होता है वी कैन से रियल एंड इन्वर्टेड। आफ्टर दैट अगर हम उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, इज इट क्लियर? पहले तो इंफिनिटी पोजीशन हमने कंसीडर की थी इस केस में, लेकिन इंफिनिटी से हम उसे अब अपने कंसीडर में ले आते हैं कि सपोज इफ आई से द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट हियर, कि दैट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए अब इस ऑब्जेक्ट से आने वाली जो वी कैन से लाइट रेज है वो यहाँ ऐसे टकराएंगी। कौन सी रे है? दिस इज इंसिडेंट रे। सपोज एक रे ऑफ लाइट इस तरह से जा रही है और दूसरी जो रे ऑफ लाइट है वो सेंटर से पास होते हुए आगे बढ़ गई इस डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? तो अब देखिए अब इसके लिए रूल क्या बनेगा? इसके लिए रूल क्या था कि जो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से पास हो जाती है, इस तरह से ये फोकस से पास हो जाएगी। Is it clear? This ray it will pass through the focus after getting reflected. Reflect back होने के बाद ये focus से pass करेगी. Is it clear? And the ray which will pass through the center of curvature, जो ray of light center of curvature से pass करती है, it gets reflect back along the same direction. वो उसी direction में reflect back हो जाती है. तो ये भी हमारा रूल था। इससे पहले वाले जस्ट इससे पहले मैंने जो आपको पढ़ाया था, रूल्स पढ़ाए थे मैंने आपको, तो एक तो रूल यही था कि जो पैरेलल जाएगी वो कैसे चली जाएगी? थ्रू द फोकस। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो कैसे जाएगी? इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, उसी पाथ से। तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर काट रही हैं, तो इमेज हमारी यहाँ पर बन जाएगी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ बनी? दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इमेज विल बी फाउंड हियर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास इमेज बन गई। इज इट क्लियर? तो दिस इमेज विल बी कंसीडर्ड एज द नेगेटिव, क्योंकि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जो इमेज हाइट हम मेजर करेंगे वो नेगेटिव में मेजर करेंगे, मैंने साइन कन्वेंशंस में आपको बताया था। तो इसी तरह से तो देखिए जो पोजीशन रहेगी इमेज की वो क्या रहेगी? बिटवीन द सी एंड एफ, इन दोनों के बीच में ना, दिस इज द पॉइंट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द फोकस, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी? इमेज। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन द सी एंड एफ। और ऑब्जेक्ट इमेज का साइज कैसा रहेगा? ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतनी छोटी है, तो कैसी है? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कैसा रहेगा? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल बी द नेचर? इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मींस एक्चुअली इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द कैमरा स्क्रीन, यानी एक्चुअल में इसे स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी कैन से इट्स लेफ्ट विल बी its left will appear right and right will appear to the left. Now see the third position of the object. Now let's see the third position of the object, that is at the center of curvature. कि अगर हम object को अब shift करते हैं at the center of the curvature. So this is the center of curvature. हम object को ले आते हैं यहाँ पर. Now from this object one ray it will, we can say first incident ray it will pass in this direction, वो इस तरह से जाएगी, which will be parallel to the principal axis, जो parallel जाएगी। तो जो parallel जाती है वो क्या करती है? it reflects back through the focus, ये focus से होते हुए इस तरह से reflect back हो जाती है। is it clear? Now if we say the another line it passes through the
अगर दूसरी लाइन जो है वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो ये मिरर पे यहाँ टकराएगी, इस पॉइंट पे टकराएगी, और ये पॉइंट से टकराने के बाद क्या करती है, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो दोनों ही जो पॉइंट्स हैं अगर हम इनको अच्छे से ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये जो लाइन है वो इस तरह से आगे बढ़ती है, इस तरह से आगे बढ़ेगी, ठीक है। जब ये इस तरह से आगे बढ़ेगी और ये जो रे ऑफ लाइट है ये इस तरह से एक दूसरे को यहाँ इस पॉइंट पर ये कट कर रही है, इज इट क्लियर। यानी एक तो रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है और एक रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से है, यहाँ से, और इस तरह से आ रही है, तो दोनों यहाँ इस पॉइंट पर कट कर रही है, इस पॉइंट पर कट कर रही है, तो इमेज यहीं पर बनेगी, यहीं पर बनेगी, तो इमेज इस तरह से बन गई। सपोज दिस इज द इमेज, इज इट क्लियर। अगर ये हमारे पास इमेज बन गई है तो देखिए ऑब्जेक्ट का साइज ये है, इमेज का ये है, तो साइज कैसा रहा, ऑलमोस्ट सेम टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इमेज बनी कहां पर है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द सी, तो कहां पर बनी है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी है। देन व्हाट इज द नेचर, दैट इज अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखिए C से अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और शिफ्ट कर देते हैं और इन दोनों के बीच में ले आते हैं, C एंड F के बीच में, फोर्थ केस में अगर हमने ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सा शिफ्ट किया और यहां ले आए बिटवीन द C एंड F, इज इट क्लियर। तो देखिए वन रे ऑफ लाइट इट विल पास थ्रू इन दिस डायरेक्शन, एक तो इस तरह से जाएगी, जब यहां से पैरेलल में जाएगी तो वो प्रिंसिपल फोकस से होते हुए ऐसे वापस आ जाएगी, इज इट क्लियर। इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन दिस डायरेक्शन। एंड अनदर रे ऑफ लाइट इफ इट इज पासिंग थ्रू द पोल, तो ये जो एंगल बन रहा है इसी के इक्वल ये क्या करेगी, दूसरा एंगल बनाएगी और ऐसे ये आगे बढ़ जाएगी, इज इट क्लियर। जब ये आगे बढ़ेगी तो ये कहाँ कट कर रही है, दोनों एक दूसरे को यहां पर कट कर रही है, इज इट क्लियर। जब ये दोनों एक दूसरे को, अगर हम और अच्छे से इस डायग्राम को बेटे जब हम पेंसिल के साथ स्केल के साथ जब इन्हें अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से आएगी कि इट इज पासिंग थ्रू द फोकस। अगर ये इस तरह से फोकस से पास हो रही है, ठीक है, रे ऑफ लाइट ये इस तरह से डाइवर्ट होगी और यहाँ फोकस से इधर आ जाएगी, और ये जब अपना सेम एंगल बनाएगी तो ये इस तरह से पास होते हुए आगे आ जाएगी, तो दोनों यहाँ इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही है, इज इट क्लियर। तो इमेज कहाँ बनी, यहाँ बनी है, जो कि C के बाद में है, बियॉन्ड द C। तो यहाँ पर जो इमेज बनी है दिस इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और देखिए ऑब्जेक्ट इतना था, इमेज इतनी है, थोड़ी सी बड़ी नजर आ रही है, तो यानी इमेज इज फॉर्म्ड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। और नेचर कैसा रहेगा, दैट विल बी अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर यहाँ पर कैसा रहेगा, दैट विल बी अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। Now let's see the fifth position of the object. If we still shift the object, अगर हम फिर से object को थोड़ा सा shift करते हैं and we carry that object at F, अगर हम उस object को focus पर ले आते हैं तो देखिए क्या होगा इस तरह से कि firstly the first incident ray will fall in this direction। पहले incident ray इस तरह से जाएगी और इस तरह से जाने के बाद ये reflect back हो जाएगी, it will come through this line, और ये इस तरह से पीछे आ जाएगी, is it clear? Now if we say the another ray of light it will pass in this manner, ये इस तरह से यहाँ पर पास करेगी। यहाँ पर अगर ये सेकेंड रे ऑफ लाइट इस तरह से पास करती है, सो व्हाट वी कैन से, तो ये भी क्या होगा, इस तरह से पीछे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब ये पीछे बढ़ेगी तो देखिए ये दोनों लाइन हमें पता ही नहीं कहाँ जाकर मिलेंगी, ये ऐसे इस तरह से कॉन्टिन्यूटी से आगे बढ़ती रहेंगी, तो हमें नहीं पता चलेगा कि इमेज कहाँ पर जाकर बन रही है। तो इस केस में हम बोलेंगे इमेज इज फॉर्म्ड एट द इंफिनिटी, कि इमेज जो है वो इंफिनिटी पर जाकर बन रही है। और किस साइज की बनेगी, तो देखिए यहाँ तक आते 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 सपोज ये और भी बहुत आगे बढ़ जाएंगी, तो ये क्या होगा कि इमेज देखिए, और प्रिंसिपल फोकस जो है वो इस तरह से तो बहुत लंबा छोटा साइज हो जाएगा। सो हियर द इमेज साइज विल बी हाईली एनलार्ज्ड एंड द नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। वो कैसी रहेगी, रियल और इन्वर्टेड रहेगी। अब कहते हैं नेक्स्ट केस में अगर हम ऑब्जेक्ट को ले आते हैं कहां पर, बिटवीन F एंड P, फोकस और पोल के बीच में, तो फोकस पर लाए थे, अब यहां ले गए फोकस और पोल के बीच में, दिस इज द पोल एंड दिस इज द फोकस। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां ले गए, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एक तो रे ऑफ लाइट है वो इस तरह से जाएगी,
जब ये इस तरह से जा रही है तो टकरा करके कहां से वापस आ जाएगी, फोकस से पास, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट होती है वो पैरेलली कहां से आ जाती है, थ्रू द फोकस, वो फोकस से वापस आ जाती है। और सेकेंड रे ऑफ लाइट है वो इस तरह से जाना चाहेगी, ठीक है, सेकेंड रे ऑफ लाइट इस तरह से। अब ये इस तरह से आगे बढ़ेगी, ये ऐसे आगे बढ़ते हुए नजर आएगी, ये भी अपने आप में इस तरह से आगे बढ़ते 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 दोनों इस तरह से आगे जाकर एक दूसरे को कट करेंगी इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इमेज यहाँ पर जाकर बनेगी हमारी, ठीक है। इमेज जब यहाँ पर बनेगी तो देखिए साइज क्या है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा हो गया। और इमेज बन कहाँ रही है, सारी तो कहाँ बन रही है, बिफोर द मिरर बन रही है, लेकिन ये जो इमेज है इस केस में कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। तो देखिए इमेज फॉर्म्ड विल बी बिहाइंड द मिरर as well as it will be highly enlarged, बहुत लंबी चौड़ी इमेज यहाँ पर बनेगी। और ये जो इमेज होगी ये रियल इमेज नहीं होगी, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द कैमरा, दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से द इमेज इज वर्चुअल। इमेज जो है वो अपने आप में वर्चुअल होगी, बट इट विल बी इरेक्ट, सीधी खड़ी इमेज हमें यहाँ पर ऑब्टेन होगी। तो देखिए बेटे, ये थे हमारे अलग अलग पोजीशंस पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो अलग अलग पोजीशंस पर हमारे पास इमेज बनती है, अलग अलग उनका नेचर होता है। तो ये 6 केसेस हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं इन केस ऑफ द कनकेव मिरर। तो यहाँ तक आपने बहुत अच्छे से फोकस करते हुए स्टडी करना है। टिल दैट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।